Good morning, students. Today I'll start chapter 1, relations and functions. First of all, we will discuss about few concepts which we have studied in class 11th. As you know, you have studied about Cartesian product of two sets. If two sets are given, how to find out the Cartesian product. Let's take an example. Suppose A is equal to having elements 1 and 2 and B is having elements 2 and 3. If you want to find out cross product of A and B, then how many elements you will get in the cross product? 2 elements are in A and 2 are in B. So 2 into 2, 4 elements will be there. And these 4 elements are 1, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 3. This you have studied in class 11th. Same second concept, relations. This is also in class 11th. Relation is a subset of Cartesian product. It means relation में जो भी ऑर्डर पेयर आप लिखेंगे वो कहाँ से आएंगे? क्रॉस प्रोडक्ट से आएंगे. ए क्रॉस बी में से जितने भी हमारे पास ऑर्डर पेयर्स हैं, अगर मैं कोई रिलेशन उनमें बता के आपसे ऑर्डर पेयर कलेक्ट करने के लिए कहती हूँ तो वो कहाँ जाएंगे? रिलेशन में आ जाएंगे. लेट्स टेक एग्जांपल. सपोज रिलेशन है हमारे पास जिसमें ऑर्डर पेयर एक्स वाई लेने हैं, जिसमें एक्स और वाई दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए. एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड वाई बिलोंग्स टू कैपिटल बी. कैपिटल ए कैपिटल बी मीन्स सेट्स. So x is equal to y. In A cross B, only one element is there where x and y both are same, 2 and comma 2. So you can write one element in a relation 2 comma 2. Same as you can write a lot of relations from the A cross B. How many relations you can get from here? जितने भी A क्रॉस B के सबसेट बन सकते हैं वो सारे कहाँ आ सकते हैं? रिलेशन की तरह निकल के आ सकते हैं. तो नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने के लिए नंबर ऑफ रिलेशन इज अ सबसेट, और सबसेट निकालने का क्या तरीका होता है? 2 to the power number of elements in the set. सेट कौन सा यहाँ पर है? A क्रॉस B. कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास यहाँ पर? 4 एलिमेंट्स हैं क्रॉस B में, तो 2 to the power 4. It means 16 subsets you can prepare from the A cross B. It means 16 relations are there. One example I have given to you. Now you can make other relations. Now you can see here, if xy is an order pair belongs to relation, we say that x is related to y. अगर इस तरह से ऑर्डर पेयर को बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, इसका मतलब क्या हो रहा है? x और y में कोई रिलेशन है. जो भी रिलेशन है, अंडर दैट रिलेशन इट बिलोंग्स टू रिलेशन R. We can write it as like this, x r y. यानी कि रिलेशन x और y दोनों एलिमेंट्स के बीच में r से डिनोट करेगा. लिखने के लिए तरीका रहेगा x r y. We do not bother whether there is a recognizable connection or link between x and y. Whatever relation is given to you, you have to collect the elements accordingly. Now next, from this topic you will start for the class 12th, types of relations. If you want to know more about relations and functions, then you go to the videos which I send in class 11, definition of relation and definition of functions. You can go through from that video if you want to study previous class 11th. Now proceed types of relations. Now two types of relations are here. First is empty relation, empty set 5, और यूनिवर्सल रिलेशन. दो तरह के रिलेशन हम यहाँ पढ़ेंगे. पहला होगा एम्प्टी रिलेशन, दूसरा होगा यूनिवर्सल रिलेशन. एम्प्टी रिलेशन का मतलब क्या रहेगा कि अगर मेरे पास कोई सेट ए है और ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट मैंने यहाँ निकाल के दिखाया हुआ आपको, उसमें ऑर्डर पे कितने आ जाएंगे? 4 एलिमेंट है ए में, तो 4 into 4 क्या हो जाएगा हमारे पास? 16 एलिमेंट्स रहेंगे. तो मैंने डैश डैश करके आपको शो कर दिया. आप बना सकते हैं सारे ऑर्डर पेयर्स. अब आपने ये देखना है कि एम्प्टी सेट कब कहेंगे हमारे पास रिलेशन को? अगर रिलेशन में कोई ऐसा रिलेशन दिया हुआ हो जिसके अंडर कोई भी एलिमेंट हमारे पास ए क्रॉस ए से निकल कर ना आ रहा हो. यानी कोई भी एलिमेंट अगर निकल कर नहीं आ रहा है अंडर द गिवन रिलेशन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? वो सेट एम्प्टी सेट बनेगा. और क्या हो जाएगा? एम्प्टी रिलेशन सेट. जैसे फॉर एग्जाम्पल, R is a relation equal to having order pairs AB such that A minus B is equal to 10. अब आपने देखना है कि A क्रॉस A में वो ऑर्डर पेयर्स जिनमें A और B का डिफरेंस क्या है? 10 आ रहा हो, उनको आपने कलेक्ट करना है इस रिलेशन में. तो ऐसे कोई भी एलिमेंट यहाँ पर नहीं है जिसमें
ऑर्डर पेयर उठाऊं और डिफरेंस निकालने के बाद वो 10 आ जाए. So what? No order pair AB satisfy the condition. Set will be empty. तो empty relation का क्या हमारे पास definition रहेगा? If no element of A is related to any element of A, then the relation is known as the empty relation. Now for the universal relation, let's see here. From this same Cartesian product A cross A, you can see here relation R is the set of those order pairs whose difference and absolute value of this difference greater than equal to 0. अगर आप डिफरेंस निकालें और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, या तो 0 हो या फिर 0 से बड़ा हो. तो पहला ही डिफरेंस हमारे पास क्या आता है? 1 - 1 0 रहेगा. 1 - 2 -1 आएगा, बट देयर इज एब्सोल्यूट वैल्यू, you will take only 1 and 1 is greater than 0. So what it means? You can collect all these elements under this relation. अगर आप सारे ही एलिमेंट्स जो यहाँ पर ऑर्डर पेयर लिखे हुए हैं A क्रॉस A में, उनको सबको चेक करेंगे तो सब कैसे एलिमेंट्स होंगे? जिनमें एलिमेंट्स का जो हमारे पास A और B का डिफरेंस है वो क्या रहेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. तो जितने भी एलिमेंट A क्रॉस A में थे सारे के सारे एलिमेंट्स कहाँ आ गए? उस रिलेशन के अंडर आ गए. When relation is equal to A cross A, then the relation is known as the universal relation. So the definition of relation will be, universal relation will be, if each element of A is related to every element of A, then that relation is known as universal relation. Now one definition is also famous, both the empty relation and the universal relation. अगर आप दोनों relations की बात करते हैं, अगर single word में अगर आप कहना चाहते हैं, then are sometimes called trivial relations. तो अगर हम क्या कहें, both the empty relations and the universal relations are sometimes called trivial relations. Now come to the next topic, that is equivalence relation. It's very important topic. Sometime question came from this topic in CBSE board exam. Yes, equivalence relation, definition of equivalence relation is, a relation R in a set A is said to be an equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive. अगर कोई एक रिलेशन ये तीनों प्रॉपर्टीज, तीनों तरह के रिलेशंस को फॉलो करता है, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ये तीनों प्रॉपर्टीज अगर फॉलो करता है तो वो सिंगल रिलेशन क्या बन जाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है. You will say if a relation is reflexive, symmetric and transitive, then you will say the relation is known as equivalence relation. Now you have to know now first what is the meaning of reflexive and what is the meaning of symmetric and transitive. Let's see. Reflexive का meaning क्या रहेगा? Reflexive की definition है, if order pair A comma A, both are same, A belongs to the relation for every A belongs to A. अगर आप कोई रिलेशन चेक कर रहे हैं, उस रिलेशन में सेट ए के अंदर मान लीजिए 3 एलिमेंट्स हैं और मान लीजिए 1 2 3 जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, और आप चेक करना चाहते हैं कि जो रिलेशन बन रहा है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो आपने चेक करना है कि एलिमेंट का अपने साथ रिलेशन, ए के साथ ए का रिलेशन उस सेट को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा. अगर वो सारे एलिमेंट्स में इटसेल्फ रिलेशन बिलोंग कर रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा. Let's see R1, I have written here, having order pairs 1 1 2 2 1 3 2 1 3 3. इस रिलेशन में 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है. तीन ही एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर, तीनों का इटसेल्फ रिलेशन बिलोंग कर रहा है, तो ये रिलेशन कैसा रहेगा? इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. I have given next example R2. Suppose R2 में मेरे पास ऑर्डर पेयर है 2 2 1 2 2 3 and 1 1. यहाँ पर 3 3 बिलोंग नहीं कर रहा है, जबकि 3 कहाँ बिलोंग कर रहा है? A में तो बिलोंग कर रहा है, तो इसका itself relation यहाँ बिलोंग नहीं कर रहा है. It means R2 is not reflexive because 3, 3 doesn't belong the R2. Now this is a definition of reflexive. अगर A बिलोंग करता है रिलेशन को तो वो कैसा रहेगा? रिफ्लेक्सिव रहेगा. Now symmetric के लिए क्या चेक करना है आपको? If A1 A2 belongs to relation R, then A2 A1 also belongs to R. For the all A1 A2 belongs to A. अगर A1 A2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो इसका A2 आगे आ जाए और A1 पीछे, यानी कि A2 A1 भी बिलोंग कर जाए R को, तो क्या कहेंगे? फंक्शन कैसा है? रिलेशन कैसा है हमारे पास? सिमेट्रिक है.
अब रिलेशन के अंदर मैंने एक एग्जांपल लिखा है, सेम आपके पास वही सेट ए रहेगा, 1 2 3 एलिमेंट है। R1 एक मैंने रिलेशन लिखा है 1 2 2 1 3 3। अगर मेरे पास 1 2 बिलोंग कर रहा है तो 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए। 1 2 है तो 2 1 भी बिलोंग कर रहा है। 3 3 में हमारे पास ऐसा कोई रिवर्स बन ही नहीं रहा, तो ये सेट कैसा हो गया हमारे पास, सिमेट्रिक हो गया, क्योंकि 1 2 के साथ 2 1 भी बिलोंग कर रहा है। सेकेंड R2 में देखिए 1 1 2 2 2 3 3 2। अगर 2 2 और 2 3 2 2 यानी कि A1 A2 फिर A2 A3, तो क्या 2 3 बिलोंग कर रहा है इसके अंदर? चेक करिए, 1 1 2 2 2 3 3 2, 2 3 बिलोंग कर रहा है, बट 3 2 भी बिलोंग कर रहा है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास एलिमेंट? ये आ जाएगा हमारे पास सिमेट्रिक, क्योंकि 2 3 के साथ 3 2 भी बिलोंग कर रहा है। यहाँ हम चेक कर रहे थे 2 2 2 3, फिर वापस 2 3 ही बन रहा था, और 2 3 ऑलरेडी इसके अंदर लिखा हुआ है। तो यानी कि जितने भी केस हम यहाँ चेक कर रहे हैं, जितने भी एलिमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो सभी के सभी इसके अंदर वापस आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा। R3 रिलेशन देखिए, इसमें ऑर्डर पेयर लिखे हुए हैं 1 1 3 3 3 1 1 2 2 1। अगर मेरे पास 3 1 है और 1 2 है, देखिए 1 यहाँ है तो 1 आगे मैं चेक करूंगी कि यहाँ पर रिपीट हो रहा हो, A1 A2 A2 A3 3 1 3 1 2, तो 3 भी 3 2 चेक होना चाहिए, यहाँ पर 3 2 होना चाहिए था एलिमेंट। 3 2 इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, चेक करिए 3 2 बिलोंग नहीं कर रहा है, इट मींस व्हाट, दिस इज अ सेट not having element 3 2, so R3 is not a symmetric relation। देखिए मैंने लिखा है नीचे R3 is not a symmetric relation, यहाँ पर उसने चेक क्या किया था, 1 3 is also required here which is not belonging to R3, so it is not symmetric। Now transitive, A1 A2 belongs to R, A2 A3 belongs to R, ये दोनों ऑर्डर पेयर बिलोंग करने चाहिए रिलेशन को। और अगर ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं तो आप चेक करेंगे कि क्या A1 A3 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को कि नहीं कर रहा है। अगर A1 A3 बिलोंग कर रहा है तो हमारे पास रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं रहेगा। लेट्स सी रिलेशन R2, ऑर्डर पेयर्स आर 2 2 2 3, R2 2 2 3, A1 A2 A2 A3। now A1 and A3 again order pair 2 3 will be there, 2 2 और 2 3 बिलोंग कर रहे हैं, 2 और 3 का फिर ऑर्डर पेयर बनेगा तो वो भी इसको बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब R2 क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। R3 के लिए चेक करेंगे, ऑर्डर पेयर्स हैं 1 1 1 2 2 3 3 1। अब हमें चेक कर रहे हैं 1 2 2 3, तो 1 और 3 का ऑर्डर पेयर भी यहाँ पर होना चाहिए था, तो 1 3 का ऑर्डर पेयर इसमें नहीं है R3 के अंदर, तो क्या हुआ, ये ट्रांजिटिव नहीं है। That means you can check whether the given relation is reflexive, symmetric and transitive। अगर तीनों चीजें हैं तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अगर इनमें से कोई भी एक ऐसा हमारे पास प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, कोई भी एक केस ऐसा है जो कि जिसमें नो आ जाता है, तो फंक्शन सॉरी रिलेशन क्या रहेगा हमारे पास, नॉट अ इक्विवेलेंस रिलेशन। जब भी आपने इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना है, यू हैव टू चेक these three properties relation must follow: reflexive, symmetric and transitive। Now do the examples of exercise 1.1। Thank you, have a nice day।